Hello everyone, how are you? I think you all are fit and fine. So now today we will discuss the next topic of determinant. It is properties of determinant. Yes, it is very important topic for us because every year in board exams there are at least one question comes from this exercise. So let's see this topic. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में बताया, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया, और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स था. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी which represented by P1. It is P1 means property number 1. So what is this property? This property say you the value of a determinant remain unchanged if its rows and columns are interchanged. It means यदि किसी भी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता. तो अब इस बात को हम एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे कि क्या वास्तव में ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है या फॉल्स है. सो नाउ लेट्स चेक दिस प्रॉपर्टी बाय दिस एग्जांपल. सो योर एग्जांपल इज, सपोज इट इज ए फर्स्ट डिटरमिनेंट डेल्टा 1. डेल्टा 1 ओनली इट्स द रिप्रेजेंटेशन, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है. एंड नाउ यू सी इट इज एनी डिटरमिनेंट. ओके, एंड नाउ you solve it. When you solve it along to the first row, then you will get, I think you all know that, आप सभी जानते होंगे कि किस तरह से हम डिटरमिनेंट को, जो भी स्पेशली 3/3 की डिटरमिनेंट को किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं. और जो भी स्टूडेंट इसको नहीं जानता तो वो मेरा आई बटन दबाकर डिटरमिनेंट का वीडियो नंबर 1 देख सकता है. वहां पर मैंने बता रखा है कि एक 2/2 और 3/3 की डिटरमिनेंट को हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं. तो नाउ you learn how we expand this determinant. You take 1 means I expand this determinant along to the first row. So this column is removed and this row is also removed. 6 7s are 42 minus 7 4s are 28. Then according to the sign convention it is come with minus sign. So this column and this row is removed. 7 7s are 49, 4 2s are 8, 4 2s are 8, and then plus 4. So this column and this row is removed. 7 7s are 49 minus 6 2s are 12. And now you will solve it. It is 42 minus 28. So there are 14 is left, and now there are 5. 49 minus 8, that is 41. And here there are 37 is left. So now you multiply these values. 5 4s are 20, and it is 7 4s are 28. Carry 2. So it is 148, and now 148 plus 14, that is 162 minus 205. So you will get 5 2 3, 10 6 4. So you will get 43 as your answer of this determinant. And now according to the property you just change. अब हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप सारे की सारी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दो, यानी जितनी भी रोज है इनको आप कॉलम्स में चेंज कर दो. मींस 1 5 4 convert into the first column, second row convert into the second column, and third row convert into the third column, and again you will expand it along to the first row. So there are 1. So this column and this row is removed. 6 7s are 42. I think you all know that this pattern. According to the sign convention there are 7 is come. So this column and this row is removed. 35 minus 28 is come, and then there are plus 2. So this column and this row is removed. 5 4s are 20, 6 4s are 24. And now you will solve it. It is 1. 42 minus 28, that is 14. And then 7. 35 minus 28, that is 7. And there are 20 minus 24, that is minus 4. So it is 14, 49 minus 8. So 14 minus, it is 57. So which value is remaining here? There are minus 3 5 1 43. So this is also with minus sign. So it is minus 43, it is minus 43. So both values are same. Delta 1 and delta 2 both are same. So this property is proved by me. तो इस तरह से आपने देखा
कि हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रोज को अगर आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बोथ आर सेम. सो इट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी. And now let's see the second property. This second property say you if you interchange any one row with other columns, or you also say कि अगर आप किसी भी रो और कॉलम को, किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है. इट इज ए अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अस कि अगर इसमें हम किसी भी डिटरमिनेंट के रोज को या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन किस तरह से चेंज होता है. नाउ लेट्स सी. सपोज देयर आर एग्जांपल. डेल्टा इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3. If you want to interchange r1 row with r2 row, so these are three rows are here, r1 r2 and r3, and you want to interchange these r1 r2 row. So this b1 b2 b3 is come in first row and a1 a2 a3 comes in second row. So the sign of the determinant will be changed. And now again, if any student say me ki if sir we want to interchange this c1 and c3, so this is called c1 column, it is called c2 column and it is called c3 column. अब हम चाहते हैं कि c1 और c3 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो c3 यहाँ आएगा और c1 यहाँ पर आ जाएगा. ये आपस में इंटरचेंज हो गए एंड b2 a2 c2 आर एज इट इज. वापस से इंटरचेंज करने के बाद माइनस का साइन था, फिर एक और माइनस आएगा, सो इट बिकम प्लस साइन. तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि हम ये इंटरचेंजिंग कितनी बार करेंगे. देयर आर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसकी. कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं डिटरमिनेंट में जिसमें साफ साफ ऊपर लिखा होता है विदाउट एक्सपेंडिंग यू प्रूव दैट, यानी आपको एक्सपेंड नहीं करना, बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूव करना है. तो उस केस में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है क्योंकि वहां पर हमें इंटरचेंजिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है. तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी बार इंटरचेंजिंग करेंगे. आपका प्रूफ पॉइंट जब तक नहीं आएगा तब तक आप इंटरचेंज करते रहो, लेकिन याद रखना माइनस का साइन या साइन चेंज करना मत भूल जाना, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी. दैट्स ऑल, आपका क्वेश्चन गया. अगर आपने माइनस का साइन चेंज नहीं किया या माइनस से प्लस नहीं किया या प्लस से माइनस नहीं किया, वहीं पर आपका क्वेश्चन डेड हो जाएगा. तो वहीं पर आपको अंडा मिल जाएगा, 0 मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में. सो यू केयर अबाउट दिस थिंग. ओके, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें जब भी इंटरचेंजिंग करनी है किसी भी एक रो या कॉलम में, हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान जरूर रखना है. लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी अगेन. अब आपके सामने जो अगली प्रॉपर्टी मैं लेकर आ रहा हूं, ये प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल आ जाए. अब यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, बच्चे ये नहीं जानते कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल. आई थिंक आपने गेंदे देखी है, बॉल्स आपने देखी होगी. मैं आपको बहुत सारी बॉल्स देता हूँ रेड कलर की, लेकिन उनकी शेप अलग अलग देता हूँ, तो वो क्या आइडेंटिकल होगी. तो जो बच्चे आइडेंटिकल के बारे में नहीं जानते वो तो ये कहेंगे कि सर पता नहीं हमें तो आइडेंटिकल होगी या नहीं होगी. लेकिन आपको बता दूं कि अगर शेप और साइज में, कलर में सारी बॉलें एक जैसी है तो वो आइडेंटिकल होगी. तो आइडेंटिकल का मतलब है एग्जैक्टली सेम. ओके, तो किसी भी डिटरमिनेंट की अगर कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम्स अगर सेम आ रहे हैं तो उस डिटरमिनेंट को डायरेक्टली 0 कर दो. इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ सॉल्व नहीं करना आपको, नथिंग. बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रॉपर्टी पर. तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं. फॉर एग्जांपल, there are a determinant. It is a determinant a1 a2 a3 b1 b2 b3 and again there are a1 a2 a3. So you see here r1 and r3 both rows are identical because the values of each element in these both rows are same. So you direct substitute 0 here.
द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0 एंड यू आल्सो गिव द रीजन इन एग्जामिनेशन। आपको जब भी ये प्रॉपर्टी लगानी है ना, तो आपको ये मान के चलना वहां पर एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों 0 किया। कई बार एग्जामिनर आपको मार्क्स कट कर देगा विदाउट रीजन। हमारी एक तो गंदी आदत क्या पड़ी हुई है मैथ्स के अंदर, क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सब कुछ अप्लाई भी कर देते हैं सही जगह पर, प्रॉपर्टीज जानते हैं, अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन उसको लिखकर नहीं आते। उसको जिस जगह पर लिखना है, जहां पर आप जिस स्टेप में आप यूज कर रहे हो, कम से कम वहां पर लिखो तो सही कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी। एग्जामिनर सोचेगा पता नहीं इसने क्यों 0 कर दिया इसको। हाँ मैं जानता हूं कि आप जानते हो कि ये 0 क्यों हो गया, लेकिन एग्जामिनर को भी तो समझाना है कि 0 क्यों किया आपने। इसलिए लिखो उसको वहां पर उस जगह पर जहां पर आपने प्रॉपर्टी लगाई है, जहां पर आपने फॉर्मूला लगाया है। बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, लिखने में कंजूसी नहीं करनी। एग्जामिनर को ये मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है, उसको हमको हर स्टेप सिखानी है, हमें एक एक बात उसको सिखानी पड़ेगी कि कैसे आया, ये कैसे आया, तब आपका सब्जेक्टिव पेपर में आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो शॉर्टकट में लिख के चलो क्वेश्चन खत्म, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ जाएंगे। ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट इन योर सब्जेक्टिव पेपर, ये याद रखना बस। सो नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। डेल्टा इज इक्वल टू 2 4 8 5 7 3 and 1 2 and 4 and now many of the students say me sir यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई सी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल है, तो यहाँ पर तो हम 0 नहीं लिख पाएंगे कम से कम। तो फिर अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आने वाली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट रो में 2 कॉमन आ रहा है। अभी तो आप सीख लो 2 कॉमन आने का मतलब हर जो टर्म है वो 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 कॉमन ले लो। कैसे आता है अभी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बता दूंगा। तो क्या रिमेनिंग बचेगा 1 2 और 4। तो यहां आप देखोगे वापस से फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई या नहीं हो गई, तो हो गई वापस 0। 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, सो अगेन यू विल गेट 0। तो कई बार हमें डायरेक्टली इस एग्जांपल से क्या देखने को मिल रहा है, इस एग्जांपल से ये देखने को मिल रहा है कि कई बार डायरेक्टली हमें 2 रोज या 2 कॉलम्स डायरेक्टली आइडेंटिकल नहीं दिए हुए होते, हमें हमारे माइंड से सोचना पड़ता है कि ये आइडेंटिकल कैसे बनेंगे। तो आपको हो सकता है कुछ कॉमन लेना पड़े, हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, लेकिन अगर विदाउट एक्सपेंडिंग लिख रहा है ना क्वेश्चन के अंदर कि विदाउट एक्सपेंडिंग ही करो, तो आपको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करो जो प्रॉपर्टी नंबर 3rd और 2nd मैंने बताई है। ओके, सो लेट्स सी दीज 2 प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स सी द 4th प्रॉपर्टी। इसका भी अभी मैंने आपको बताया था, यूज किया भी था कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो जो न्यू डिटरमिनेंट आएगी वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की k टाइम्स हो जाएगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वापस से मैं आपको रिपीट करूं, समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स सी दिस एग्जांपल। सपोज दैट देयर आर ए डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3, and now we want to multiply to this determinant by any constant k. If each element of row or a column of a determinant is multiplied by a constant value k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant. And now let's see, we want to multiply first row only, ka1 ka2 ka3, then b1 b2 b3 and c1 c2 c3. It is a determinant in which we just multiply by k in first row. So this k is common here from the first row, and the remaining values are left a1 a2 a3 b1 b2 b3 and it is c1 c2 c3. So again it become delta. So it is your new determinant which is k times to the original determinant, यानी जो हमारी न्यू डिटरमिनेंट है जिसकी हमने एक रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया था, वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की k टाइम्स हो गई। ऐसे ही जो मल्टीप्लिकेशन आपने किया है वो मल्टीप्लिकेशन आप किसी कॉलम से भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने सर रो को ही करना है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉलम में से भी k कॉमन आ जाएगा and then there are original determinant left. Okay,
सो अगेन इट इज k टाइम्स, वापस से ये k टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह से आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट k टाइम्स हो जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन। एंड नाउ लेट्स सी द जनरल एग्जांपल। अब एक सिंपल सा हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट यहां पर है मेरे पास एक 3/3 की डिटरमिनेंट, यू सी द ऑर्डर 3/3, और उस 3/3 की डिटरमिनेंट को मैंने कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब मैंने इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया तो क्या आएगा, ओरिजिनल डिटरमिनेंट का कितना टाइम्स हो जाएगा। अब आप कहोगे सर k टाइम्स हो गया, नहीं, k क्यूब टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। सिमिलरली अगर मैं n ऑर्डर के लिए ये बात कहूं तो यहां पर k को आपको n टाइम्स यानी n रेज़ टू पावर करना पड़ेगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट का, क्योंकि जितने ऑर्डर की आपकी डिटरमिनेंट होगी उतना टाइम्स यानी k रेज़ टू पावर पर उतनी पावर जितने भी ऑर्डर की डिटरमिनेंट होगी वो आ जाएगी। अगर n ऑर्डर की है तो k रेज़ टू पावर n आ जाएगी, 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है तो k स्क्वायर आ जाएगा, 3 ऑर्डर की है तो k क्यूब आ जाएगा, बिकॉज दिस कांसेप्ट इज यूज्ड टू सॉल्व द MCQs टाइप क्वेश्चन। सो यू लेट्स सी these two results here. ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ k क्यूब क्यों आया और यहाँ k रेज़ टू पावर n क्यों आई। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ली है 3/3 ऑर्डर की, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। आप सब जानते हो कि हर एलिमेंट मैट्रिक्स का k से मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एलिमेंट। तो हर एलिमेंट को हमने k से मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद हमने जैसे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करी, देन वी विल टेक डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जैसे ही हमने डिटरमिनेंट लिया तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, अब जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जिस तरह से आप यहां पर k कॉमन ले सकते हो या रो वाइज ले सकते हो या कॉलम वाइज ले सकते हो। तो सपोज करो हमने रो वाइज कॉलम लिया k फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से भी k कॉमन आएगा और फिर थर्ड रो से भी k कॉमन आएगा। जिस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना उसी तरह से कॉमन भी ले सकते हो। तो क्या रिमेनिंग बचेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। इट मींस इट बिकम k क्यूब। तो ये k क्यूब बन गया और ये आपकी ओरिजिनल डिटरमिनेंट बन गई a। सो आई एम सेइंग यू, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितने ऑर्डर की डिटरमिनेंट होगी उतनी पावर आ जाएगी। 4/4 के तो k रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। मुझे लगता है कि आप ये मेथड समझ गए होंगे। तो आपको, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है देन यू शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए जो इसे नहीं देख पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है, मैं कब किस वक्त कोई इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं ये मैं भी नहीं जानता, बिकॉज ये आपके वीडियोस जो बनते हैं उसमें मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं। बाकी मुझे क्या बोलना है मुझे भी नहीं पता कि मैं अगली सेंटेंस में क्या बोलने वाला हूं। सो यू सी वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना है, आपको लगकर बैठना पड़ेगा। अगर 20 मिनट का वीडियो है तो 20 मिनट देखिए, 30 मिनट का वीडियो तो 30 मिनट देखिए। 100% आपको वो टॉपिक उस दिन समझ में आएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आजकल मैंने नया पैटर्न शुरू किया है, वहां पर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपको उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे मेल करिए, जिसके थ्रू मैं जान पाऊं। आई डोंट वायरल माई मोबाइल नंबर, मैं मेरे मोबाइल नंबर को वायरल नहीं कर रहा हूं अभी, केवल मेल मैं वायरल कर रहा हूं। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर वी हैव द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं हो सकता है आपकी डिमांड पर उन प्रॉब्लम्स के लिए नया वीडियो बनाकर लाऊं। अभी आप देखिए, अभी स्टार्टिंग है ये मेरी, इट इज ओनली 11th वीडियो। ये केवल 11वां वीडियो आपके सामने मैंने बनाया। धीरे धीरे क्वालिटी, वॉइस, सब कुछ क्वालिटी वाइज इंप्रूव होगा, लेकिन टाइम लगेगा सब चीजों में। मुझे भी नहीं पता कि कौन सा वीडियो कब अच्छा बनने वाला है, लेकिन मैं लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे जा रहा हूँ। आप सब लोग इस देख भी रहे होंगे और फील भी कर रहे होंगे। आई इंप्रूव एवरी वीडियो, मैं हर वीडियो को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया समझ में आए। तो हो सकता है कि 15 वीडियो के बाद
16 वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलने लग जाए। सो एवरी टाइम यू कम ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। दूसरों को भी कहिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, शेयर भी करते जाइए, क्योंकि विदाउट शेयरिंग, विदाउट योर मोटिवेशन आई नेवर कम्स फॉरवर्ड, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जरूरी है कि आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स की जरूरत हो तो कमेंट्स भी करें। तो लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी। अब आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 5 में लेके आ रहा हूं। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ज्यादा काम में आती है। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है? इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि कोई भी मान लो डिटरमिनेंट आपके सामने आ गई, उस डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो या दो से ज्यादा टर्म्स हैं, टू और मोर टर्म्स, ओके, दो या दो से ज्यादा टर्म्स, तो आप क्या करोगे, उस डिटरमिनेंट को जितनी टर्म्स हैं उतनी ही डिटरमिनेंट्स की सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी सपोज करो फर्स्ट रो के अंदर दो टर्म्स का आपको सम गिवन है, देयर आर सम ऑफ टू टर्म्स, सो यू डिवाइड दिस वन डिटरमिनेंट इन द सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स। अब वो किस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को सम अप करेंगे, देखिए इस एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a1 plus alpha, b1 plus beta and c1 plus gamma, and there are a2, b2, c2, and there are a3, b3 and c3. So what you see here, in the first row there are sum of two terms, sum of the two elements, okay. So now you break this determinant into the sum of two determinant like this, a1, b1, c1, a2, b2, c2 and a3, b3, c3 plus, now you write here alpha, beta, gamma and the remaining two rows are as it is. बाकी की दो रोज को आपको कुछ नहीं करना, as it is लिखना है। आपने केवल इन दो टर्म्स को ब्रेकअप किया है। अब ये काम जो यहाँ हो रहा है वो हो सकता है कॉलम में भी हो। सपोज करो इस तरह से, सपोज करो यहाँ पर a1 प्लस अल्फा यहाँ आ जाए, b1 प्लस बीटा यहाँ आ जाए और c1 प्लस गामा यहाँ आ जाए। बाकी यहाँ पर a2, b2, c2 है और यहाँ पर a3, b3 और C3 है, तो भी आप यहाँ पर दो टर्म्स आते ही इसको टू डिटरमिनेंट्स में ब्रेकअप कर सकते हो इस तरह से, a2, b2, c2 and a3, b3, c3 plus and now there are alpha, beta, gamma in the first column। तो इस तरह से फर्स्ट कॉलम में आप अल्फा, बीटा, गामा लिख सकते हो। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। मुझे लगता है कि आप इस प्रॉपर्टी को अब समझ गए होंगे। किसी भी रो या कॉलम में अगर यहाँ पर तो देखो टू टर्म्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपके हर क्वेश्चन में टू टर्म्स से ज्यादा नहीं आएंगे। इफ देयर आर थ्री टर्म्स आर देयर तो आपको थ्री डिटरमिनेंट्स में आपको ब्रेक करना होगा। वैसे तो मैं बता रहा हूँ दो टर्म्स ही काफी है। अगर मैंने जो एनसीईआरटी की अगर आपकी बुक देखी है, एनसीईआरटी की बुक में तो टू टर्म्स ही है, थ्री टर्म्स वाले क्वेश्चन आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकते, हो सकता है उसको भी आपको ब्रेक करना पड़े। तो आपका फंडामेंटल यही रहेगा। इसी तरह से आप अगर थ्री टर्म्स है तो थ्री डिटरमिनेंट की सम में एक्सप्रेस कर सकते हो, टू टर्म्स है तो टू डिटरमिनेंट्स की सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी अगेन। अब मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 बता रहा हूं। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रॉपर्टी 6 आप वैसे ही समझ जाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। I will explain you through this example. Suppose that there are a determinant and in this determinant there are a1, a2, a3 in the first row, b1, b2, b3 in the second row, and in the third row there are three zeros. And there are another determinant delta 2 in which there are 1, 3, 5, 2, 4, 0 and 0, 0, 0. So in these two examples it is clear. In the first example, in the third row, every element is 0. And in the second example, third column, again every element is 0. So this property say you कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के तीनों वैल्यूज अगर 0 आ जाए, then without expanding this determinant आप सीधा क्या कर दो, 0 फोड़ जाओ, वहां पर 0 लिख दो, तुरंत प्रभाव से वहां 0 लिख के आ जाओ। So I think it is very simple property। इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट को नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये देखने से ही पता लग जाएगा आपको कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। एंड नाउ लेट्स सी द सेवंथ।
These are a very small properties. In seventh properties, suppose that there are again a determinant a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2 and c3, and you know that the corresponding cofactors of these are a1, a2, a3, b1, b2, b3 and c1, c2, c3. These are in capital form. Okay, so this property say you, if you multiply the element with its corresponding cofactors, अगर आपने एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपने किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जीरो ही हो जाएगा। तो आई थिंक ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कोफैक्टर और माइनर वाले कॉन्सेप्ट में, तो ये भी आप जानते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बार अप्लाई की है, आई थिंक यू ऑल नो दैट अबाउट दिस प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड इट इज से Ri goes to Ri plus Krj and you also write in this column form also, आप इसको कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हो, Ci goes to Ci plus Kcj। सो दिखने में बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी दिख रही है, लेकिन पूरा का पूरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसी प्रॉपर्टी से हुआ था। और मैक्सिमम हमारे जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन हैं वो भी इन्हीं प्रॉपर्टीज से ज्यादा होंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये प्रॉपर्टीज कर रखी है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या हो सकता है इसी वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं जो इन प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होंगे। दिस इज इनफ। आई थिंक ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो मेरे हिसाब से आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर जो भी क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में आए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में आए, यू क्रैक इट। आप उसको 4 डालोगे, पूरे मार्क्स ले आओगे उसके अंदर, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने हार्ड वर्किंग की तो, यानी आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं आपको वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, 6 करा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 5 और 6 क्वेश्चन इज नॉट सफिशिएंट। आप भी जानते हो कि हम कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे कर लेंगे, देन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो बहुत हायर हो जाएगा। फिर आप डरोगे नहीं इन क्वेश्चंस को देखकर, आप तुरंत करोगे, फटाफट करोगे। तो इट इज द पावर ऑफ द प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बताया। इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाले जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने जो भी प्रॉपर्टीज सीखी, अब ये हमारे लिए बेनिफिशियल तभी होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो आज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी पीडीएफ गिवन है, उस पीडीएफ के क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन करिए। एनसीईआरटी बुक, आपके स्टेट बोर्ड का जो भी बुक प्रेस्क्राइब है उसके क्वेश्चंस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में, इट इज द पार्ट 1 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का, ये पार्ट 1 का वीडियो है जिसमें केवल मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर डिपेंडेंट होंगे। सो आप अगर ये सब कुछ सही समझ पा रहे हो, अगर आपको ये सब कुछ सही समझ में आ रहा है, तो आई थिंक यू विल डू योर बेस्ट। आप अपना सबसे बेस्ट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज करना। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन हमसे होता नहीं है और हम टोटली डिमोलाइज हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस लेने हैं वो इजी टू हार्ड लेने हैं, मतलब सबसे पहले इजी क्वेश्चन लेना है और फिर धीरे धीरे आपको हार्ड की तरफ जाना है। ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन ही आपने हार्डेस्ट ले लिया और वही आपसे हुआ नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेवल क्वेश्चंस के देखो, सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चंस लो। एनसीईआरटी में बिल्कुल सही पैटर्न दे रखा है, इजी टू हार्ड, ये पैटर्न एनसीईआरटी बुक्स का रहता है। स्टेट बोर्ड्स में भी, और मेरे हिसाब से जो एक गुड राइटर है उसकी थिंकिंग भी यही होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा स्टार्टिंग में बेसिक्स क्वेश्चन देगा
उसके बाद धीरे धीरे एप्लीकेशन बेस्ड और हार्ड क्वेश्चंस देगा, जिससे स्टूडेंट्स आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाए। तो आज के वीडियो को अप्रोक्सीमेटली शायद 30 मिनट हो चुके होंगे, तो इट इज इनफ फॉर यू, क्योंकि आप एक साथ इतना बड़ा वीडियो नहीं देख पाते कई बार। अब आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। दूसरा, आपको इसको लाइक करना है वीडियो को, और फिर इसको शेयर भी करना है। सो गुड बाय एंड टेक केयर।